Welcome everybody to this new lecture of our book Electronics Communication System. Today we will continue our discussion about methods of frequency modulated wave generation. In our previous lecture we were discussing about the direct method of frequency modulated wave generation, and the first method to generate the FM wave is by the use of reactance modulator, and we studied this type transistor reactance modulator to generate the frequency modulated wave. And another direct method is the use of Vector diode as frequency modulated wave, or the source of generate the frequency modulating wave. These two methods, that is the direct method. Why these method is so called as direct method? Because in direct method, if we change, let us as in the case of Vector diode, let's see that why these method is so called as direct method. Because when we change the modulating signal voltage, in this case, in the case of Vector diode, as we studied in our previous lecture, that when we change or something change in the modulating signal voltage, consequently there is a change into the frequency of modulated wave. That means if we change the modulating signal, there must be a change in the output of this LC circuit, or you can say that if we change the modulating signal, there is a consequent change in the frequency of modulated wave. That is, by changing the modulating signal, there must be a change in the frequency of modulated wave. That's why this method is known as direct method. This method is known as direct method. But in today's lecture, as we will discuss about indirect method of FM generation. In this method, this method is also known as Armstrong phase modulator. Okay, Armstrong phase modulator, or you can say it as indirect method of FM generation. In this method, of FM generation, when we change the modulating signal, when there be a change in the modulating signal voltage, the consequent change in the frequency cannot be occur. Okay, that's why this method is known as indirect method of FM generation. यानी जैसे जैसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज बदलेंगे, तो डायरेक्ट मेथड में ये हो रहा था कि जैसे ही हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज बदलते थे, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी. चूंकि एफएम जनरेशन हम स्टडी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव वो वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बदल जाए. तो जैसे ही हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज कर रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंस में हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिल रहा था. लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता. अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं तो वैसा ही चेंज हमें फ्रीक्वेंसी में देखने को नहीं मिलता. हालांकि जो आउटपुट होती है वो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ही मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो. लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेथड इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में वोल्टेज में चेंज करने से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज चेंज करने से हमें कॉन्सिक्वेंट चेंज मॉड्यूलेटेड वेव में नहीं मिलता, बल्कि वो चेंज पहले फेज में होता है और उसके बाद, यानी जैसे ही आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज बदलेंगे तो जो फेज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का वो बदलेगा और वो कॉज करेगा बाय टू द चेंज और टू द मॉड्यूलेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव. यानी ये इनडायरेक्ट हुआ. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, बल्कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज में चेंज करने से पहले फेज में चेंज आएगा और फेज में चेंज ही रिस्पॉन्सिबल होगा टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. और चूंकि जो फेज चेंज है, किसी भी वेव का फेज चेंज है, वह एक्चुअली
फ्रीक्वेंसी में चेंज ही है, उसका रीजन भी है। जब हम फेज मॉड्यूलेशन वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे तब आपको वहां पता लगेगा कि कैसे जो फेज मॉड्यूलेशन है इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, सो वो वहीं हम जब स्टडी करेंगे वहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर। ओके, this is the block diagram of Armstrong phase modulator, and you see here the two dotted blocks. The first block, this block, this block is known as phase modulator, and the second block here is this block. This block is known as multipliers and amplifiers. ओके, एक्चुअली यहाँ जो आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर है, चूंकि इस टॉपिक का नाम ही आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर है, तो पहले क्या होगा, यहाँ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करने से जो हमारे पास वेव है, कैरियर वेव है, उसके फेज में चेंज आएगा, और उसके फेज में चेंज ही कारण बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज का। वो हम देख लेते हैं। ओके, एक्चुअली जो मेरे पास ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसको मैं फेज मॉड्यूलेटर कह रहा हूँ, यही मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ एफएम वेव। इस दूसरे ब्लॉक का काम केवल, चूंकि ये मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर्स का ब्लॉक है, तो एम्पलीफायर और मल्टीप्लायर का ब्लॉक होने की वजह से ये केवल इस एफएम वेव के सिग्नल को, आप ये देख रहे हैं, इस पूरे ब्लॉक का, इस जिसको हम फेज मॉड्यूलेटर कह रहे हैं, इस पूरे ब्लॉक की जो आउटपुट है वो एफएम वेव है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। यही तो हम चाह रहे थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से ही हम जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो तो एफएम जनरेशन ही है। तो ये पहला ही ब्लॉक मुझे क्या दे देता है, एफएम वेव, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव दे देता है। तो इसी ब्लॉक से मेरा काम हो जाता है, जो मेरा टारगेट है। लेकिन ये जो ब्लॉक है मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर्स का, ये केवल क्या करता है, ये जो एफएम वेव यहाँ से आई है, इसके पावर लेवल में इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है इसके पावर लेवल को। और इसके पावर लेवल जब इन्हांस हो जाता है, ये ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स है, फिर वो मिक्सर में जाता है, फिर ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर, फिर ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर में जाता है, फिर वो क्लास सी पावर एम्पलीफायर के पास जाता है, और फिर यहाँ ये एक एंटीना लगा है जिसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना कह रहे हैं। इस ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू वो इंफॉर्मेशन, वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है, वो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो एक्चुअली मेरा काम ये ब्लॉक कर देगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मुझे दे देगा, और वो जो एफएम वेव आएगी, इसकी जो आउटपुट होगी एफएम वेव, उसके पावर लेवल को केवल इन्हांस करेगा ये वाला ब्लॉक। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला ब्लॉक है, ना कि ये ब्लॉक है। ओके, सो हमें कंसंट्रेट यहाँ करना है। ये केवल ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर है जिसका काम केवल एफएम वेव के पावर लेवल को इन्हांस करना है। ओके, तो अभी हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इस ब्लॉक के ऊपर रहेगा जिसको हम फेज मॉड्यूलेटर कह रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी इट। फेज मॉड्यूलेटर, यहाँ देखिए, ये पूरा ब्लॉक फेज मॉड्यूलेटर है। यहाँ से जो पहला कंपोनेंट मुझे दिख रहा है वो एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है? आप ऑसिलेटर के बारे में स्टडी करके आए हैं। ऑसिलेटर का काम है एक साइनोसोडियल वेव को जनरेट करना, एक साइनोसोडियल वेव को जनरेट करना। ओके, आप बहुत सारे ऑसिलेटर पढ़ के आते हैं, साइनोसोडियल वेव को वो जनरेट करते हैं। ओके, लेकिन जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडियल वेव को ये जनरल ऑसिलेटर अगर आप यूज करेंगे यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर की जगह, तो वो साइनोसोडियल वेव तो वो भी जनरेट करेगा, क्योंकि ऑसिलेटर का काम ही यही है। एलसी सर्किट लगाइए, साइनोसोडियल वेव पाइए। तो साइनोसोडियल वेव को जनरेट कोई भी ऑसिलेटर कर देगा, लेकिन मुझे चाहिए एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडियल वेव। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर मुझे वो काम करके देता है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडियल वेव का जनरेशन करके देता है। और एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडियल वेव ही एक्चुअली में क्या है? कैरियर वेव है। एक्चुअली में क्या है? कैरियर वेव है। तो यही तो हम चाहते हैं, कैरियर वेव। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है? मुझे कैरियर वेव को प्रोवाइड कराना। कैरियर वेव वो वेव है जिसके ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सुपर इम्पोज होता है और
वो फिर एक, चाहे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हो या फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, एक मॉड्यूलेटेड वेव वहां से मुझे मिल जाती है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम है मुझे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडियल वेव को जनरेट करके देना, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर वेव कहते हैं। अब ये कैरियर वेव पहुंचती है बफर के पास, ये दूसरा ब्लॉक है बफर। अब बफर क्या करता है, इस साइनोसोडियल वेव में से जो डिस्टॉर्शन एलिमेंट्स हैं, जैसे नॉइज का डिस्टॉर्शन हो गया और भी किसी तरह के जितने डिस्टॉर्शंस हैं, उन सब को ये आइसोलेट कर देता है, उन सब से इस कैरियर वेव को आइसोलेट कर देता है। तो बफर का काम है ये। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ने क्या किया, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को जनरेट किया। वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव, कोई हम कैरियर वेव जिसको हम सिंपली कैरियर वेव कहते हैं, वो जनरेट करके दी। वो कैरियर वेव पहुंचती है बफर के पास, और बफर उस कैरियर वेव में से जो डिस्टॉर्शन लाइक एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देता है, आइसोलेट कर देता है, और एक प्योर कैरियर वेव मुझे वहां से मिल जाती है। अब ये देखिए, अब ये जो कैरियर वेव यहाँ से बफर से निकलती है, ये पहुंचती है कंबाइनिंग नेटवर्क में। अब इस नेटवर्क के हम बाद में बात करेंगे। कंबाइनिंग नेटवर्क में, कंबाइनिंग नेटवर्क का क्या ऑपरेशन है, किस तरह से कंबाइनिंग नेटवर्क वर्क करता है, इसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से बफर से इस कैरियर वेव में से एक वेव 90 डिग्री फेज शिफ्टर के पास पहुंचती है, यानी यही वेव, कैरियर वेव 90 डिग्री फेज शिफ्टर के पास पहुंचती है। और ये आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि जो 90 डिग्री फेज शिफ्टर है, ये क्या काम करेगा। 90 डिग्री फेज शिफ्टर इस कैरियर वेव के फेज को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है, 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है। और यहां से जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ जो कैरियर वेव है वो कहां चली जाती है, ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास चली। यहाँ देखें 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर, यानी यहाँ से जो कैरियर मुझे बफर से जो कैरियर मिला था, जो एक आइसोलेट कैरियर था, जो एक एक्सट्रैक्ट कैरियर था, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, कंबाइनिंग वेव में। और वहीं से वो कैरियर पहुंचता है 90 डिग्री फेज शिफ्टर के पास। 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करता है, उस कैरियर वेव को 90 डिग्री फेज एंगल उसका शिफ्ट कर देता है, और वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ कैरियर वेव बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास पहुंच जाती है। अब बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में एक इनपुट इधर से भी आ रही है, ये देखिए एरो, ये वाला एरो, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ये इनपुट यहाँ से भी आ रही है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ है हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी वो सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज, वो वॉइस मैसेज जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं, यही है इंफॉर्मेशन छिपी हुई। ये कैरियर वेव तो केवल इस इंफॉर्मेशन को ले जाने का एक साधन है, बाकी जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो यही छिपी हुई है। ओके, तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये ऑडियो इक्विलाइजर में पहुंचता है पहले। ओके, ऑडियो इक्विलाइजर क्या करता है, देखिए ऑडियो इक्विलाइजर का काम है ऑडियो को, जो ऑडियो सिग्नल हम, चूंकि हम जब भी हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, हम ऑडियो सिग्नल पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऑडियो इक्विलाइजर क्या करता है, मान लीजिए मेरे पास ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एक ऑडियो की फॉर्म में, एक ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में है। तो ऑडियो सिग्नल को जब ऑडियो इक्विलाइजर में जाता है तो ऑडियो इक्विलाइजर इस सिग्नल को स्मूथ कर देता है। ओके, स्मूथ का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो अभी मेरी जो पिच है बोलने की, या मेरा जो एम्पलीट्यूड है बोलने का, या मैं कहूँ मेरा जो मॉड्यूलेशन है बोलने का, वो कभी अप है, कभी डाउन है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो वॉइस मैसेज है उसमें भी वैसे ही रहा, क्योंकि बोलने की जो आवाज़ है उसका पिच कभी हाई हो जाता है, कभी एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब वॉल्यूम हाई हो जाता है ना। तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में सारे डिस्टॉर्शंस हैं। ऑडियो इक्विलाइजर इन सारे डिस्टॉर्शन को दूर करता है, ऑडियो इक्विलाइजर उसको स्मूथ कर देता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तो स्मूथ वॉइस सिग्नल का, स्मूथ वॉइस सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को स्मूथ वॉइस सिग्नल में बदल देता है कौन, ऑडियो इक्विलाइजर। और ऑडियो इक्विलाइजर से जो इक्विलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो इक्विलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो पहुंचता है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से। तो आप ये देखिए कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में दो इनपुट हैं,
पहली इनपुट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, जो एक इक्वलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फॉर्म में कहाँ पहुंचता है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास पहुंचता है। और दूसरी इनपुट है कहाँ से, यहाँ देखिए, दूसरी इनपुट है 90 डिग्री फेज शिफ्टर की। यहां से जो कैरियर वेव है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ कहां पहुंचती है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास पहुंचती है। तो यहां से पहुंच रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यहां से पहुंच रहा है 90 डिग्री फेज शिफ्ट कैरियर। अब बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास जब ये दोनों इनपुट जाती हैं तो ये इनको सुपर इम्पोज करता है। और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का वर्क आपको पता है, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम डिस्कस कर रहे थे तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर हमने वहां डिस्कस किया था। और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये जो कैरियर, चूंकि आपको पता है कि मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में हमारे पास कैरियर बैंड होता है, हमारे पास 3 बैंड वहां होते हैं। कैरियर बैंड होता है, हमारे पास वहां 2 साइड बैंड होते हैं जिनको हम अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड कहते हैं। तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का काम क्या है, कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है। वो जो आउटपुट है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की, जिसको हम DSBSC जनरेशन कहते हैं, डबल साइड बैंड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम, जिसको DSBSC सिस्टम कहते हैं, वो उसके उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है, यहां से इस जो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की आउटपुट होगी ओनली साइड बैंड्स यानी कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है। यहाँ देखिए बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के आउटपुट में क्या लिखा है, ओनली साइड बैंड्स, यानी यहां से हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहले हमने भेजा ऑडियो इक्वलाइजर में, ऑडियो इक्वलाइजर ने उसको स्मूथ कर दिया। जो इक्वलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो पहुंचता है मॉड्यूलेटिंग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में और यहां से 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ पहुंचती है कैरियर वेव। वो दोनों एक दूसरे के पास सुपर इम्पोज होते हैं और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आउटपुट जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट है उसमें से कैरियर को सुप्रेस्ड कर देता है और मेरे पास बचते हैं ओनली साइड बैंड्स, जो कहां पहुंचते हैं, ओनली साइड बैंड्स मेरे पास पहुंचते हैं कंबाइनिंग नेटवर्क में। और यहां से देखिए बफर की जो आउटपुट थी कैरियर वेव, ओके, जो मुझे किसने दी थी, क्रिस्टल ऑसिलेटर ने दी थी, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर में दी थी बफर। तो बफर से कैरियर वेव यहां पहुंचती है, ओके। और कैरियर वेव में क्या होता है, कैरियर वेव में यहाँ कैरियर वेव आती है और यहाँ साइड बैंड्स पहुंचते हैं और कंबाइनिंग नेटवर्क में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब कंबाइनिंग नेटवर्क का जो आउटपुट है बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है कंबाइनिंग नेटवर्क का। अब कंबाइनिंग नेटवर्क का जो ऑपरेशन है उसको हम फेजर डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो लेट्स सी इट। ये देखिए, ये है फेजर डायग्राम, यहाँ देखिए, दिस इज फेजर डायग्राम, ओके। फेजर डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो फेजर डायग्राम है ये आपको बताएगा कि कैसे जो कंबाइनिंग नेटवर्क का ऑपरेशन है वो होता है, ओके। सो लेट्स सी इट। ये मेरे पास फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में क्या होता है, मेरे पास पहले अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था, समझ रहे हैं आप बात को। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर कहाँ था, मेरे पास बफर के पास जो कैरियर है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर ही है। तो इस तरह के कैरियर को मैंने अनमॉड्यूलेटेड कैरियर मान लिया। वर्टिकल लाइन को मैंने मान लिया ये अनमॉड्यूलेटेड के, जैसे मेरे पेन के निब का डायरेक्शन है उसको मैंने मान लिया ये एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है, ओके। फिर 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करता है, इस कैरियर को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है। तो ये मेरे पेन का डायरेक्शन था, अब इस पेन को मैं 90 डिग्री शिफ्ट कर देता हूं तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 पेन हैं इनके बीच का ये जो एंगल है, अब ये एंगल आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये अब ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था और 90 डिग्री फेज शिफ्टर ने क्या किया, इस कैरियर को 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया, ओके। नाउ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये जो मेरे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया था,
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया था उसमें से कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है, यानी जो अपर साइड बैंड था और जो लोअर साइड बैंड है, कैरियर तो है ही नहीं, अब अपर साइड बैंड इस तरफ है, लोअर साइड बैंड इस तरफ है, तो और कैरियर को इसने सप्रेस्ड कर दिया। जो डॉटेड लाइन यहाँ बनी है ये कैरियर को सप्रेस करने की वजह से बनी है। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो रिजल्टेंट साइड बैंड होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। अब कंबाइनिंग नेटवर्क कैसे काम करता है देखिए, ये था मेरे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, यहाँ देखिए ये वाला, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो यहाँ देखिए अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की डायरेक्शन इस तरफ है, यस। अब देखिए, और ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड, रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड, यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड, ये हो गया हमारे पास अपर साइड बैंड और ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन लोअर साइड बैंड की। तो ये हुआ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, जो कहां से पहुंचा, कैरियर से, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, और ये हो गया मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड। तो इन दोनों का ये जो पेंसिल है ये दिखा रही है मुझे डायरेक्शन किसका, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का। यहाँ देखिए डायरेक्शन है या नहीं अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की, ये बताइए। इस पेंसिल की जो नोक है वो किसका डायरेक्शन मुझे दिखा रही है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का। यहाँ देखिए अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का इस तरफ डायरेक्शन है या नहीं है। और ये जो पेन की निब है ये मुझे दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। बताइए इस डायरेक्शन में है या नहीं है। तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर हो गया पेंसिल की निब की डायरेक्शन में, और जो रिजल्टेंट है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का ये हो गया इस पेन के निब की डायरेक्शन में। तो वेक्टर डायग्राम को हम यूज करते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरफ होगा, जिस तरफ इस ब्लैक पेन का निब है इस तरफ होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आउटपुट ऑफ कंबाइनिंग नेटवर्क। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि यहां से जब आप चेक करेंगे तो ये डायरेक्शन हुई अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की। यहाँ देखिए डायरेक्शन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की है या नहीं। अब ये जो डायरेक्शन है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की, ये डायरेक्शन यहाँ भी है, और ये डायरेक्शन है सप्रेस्ड, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड की। ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऑफ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड की। तो ये देखिए डायरेक्शन है या नहीं। अब ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट एट द आउटपुट ऑफ कंबाइनिंग नेटवर्क। लेकिन इसमें जो अंतर है वो ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए फाई है। तो जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था और रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड है, इन दोनों के बीच एक फेज एंगल आ जाएगा, एक फेज शिफ्ट आ जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं फाई। अब देखिए यहाँ ब्लॉक डायग्राम को, यहाँ देखिए ये है। अभी देखिए ये था मेरे पास बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में केवल ओनली साइड बैंड्स होंगे, यानी यहां से जो साइड बैंड का रिजल्टेंट आएगा और बफर ने जो कंबाइनिंग नेटवर्क को कैरियर दिया। अब कंबाइनिंग नेटवर्क में क्या होगा, यहाँ बफर से आया हुआ कैरियर और बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से आए हुए साइड बैंड्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे पर रिजल्टेंट करेंगे, एक दूसरे को रिजल्ट करेंगे। लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होगा उसमें फाई का फेज एंगल का डिफरेंस होगा, फाई का फेज डिफरेंस मिलेगा। इन दोनों के जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच में, उसके बीच में फाई का फेज डिफरेंस होगा। दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस फेजर डायग्राम, दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस। ये डायरेक्शन थी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की, इसको हमने 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरह की। अब ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की आउटपुट है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर आपको पता है कैरियर को सुप्रेस्ड कर देता है, और कैरियर को सुप्रेस्ड करने से केवल मेरे पास अपर साइड बैंड बचता है और लोअर साइड बैंड बचता है। इनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों साइड बैंड का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, चूंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म मुझे बताता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब कंबाइनिंग नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ कंबाइनिंग नेटवर्क में अनमॉड्यूलेटेड कैरियर आता है, कहाँ से, बफर से, यहाँ से आता है बफर से, और रिजल्टेंट बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की आउटपुट आती है यहाँ से, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। और ये दोनों कहाँ होते हैं आपस में कंबाइन आके, कंबाइनिंग नेटवर्क में। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, कौन से, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव एंड द आउटपुट ऑफ द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ये दोनों, तो
ये हुई डायरेक्शन किसकी, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की, और ये डायरेक्शन हुई रिजल्टेंट ऑफ साइड बैंड्स की। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के साथ कितने का फेज डिफरेंस बनाएगा, 5 का फेज डिफरेंस बनाएगा विद अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, यानी कैरियर वेव को 5 का फेज डिफरेंस देगा, द रिजल्टेंट ऑफ कंबाइनिंग नेटवर्क। तो यहां देखिए ये है मेरे पास कंबाइनिंग नेटवर्क, यहां बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के आउटपुट और बफर के आउटपुट को कंबाइन करता है, और जो कैरियर वेव यहां बफर से आती है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लाता है। ओके, और मैं बता रहा हूं आपको कि चूंकि इसका नाम, इस पूरे ब्लॉक का नाम ही फेज मॉड्यूलेटर है, इस पूरे ब्लॉक का नाम ही फेज मॉड्यूलेटर है, तो इसका काम ही फेज में डिफरेंस है। और एक्चुअली जब हम फेज मॉड्यूलेशन को स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा अच्छे से, एक्चुअली जो फेज का मॉड्यूलेशन है वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज ए स्पेशल क्लास ऑफ, सॉरी, फेज मॉड्यूलेशन इज ए स्पेशल क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जब किसी भी वेव के फेज में चेंज होता है तो एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा होता है। कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक वेव फॉर्म है, कोई भी एक वेव फॉर्म है, मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये मेरे पास वेव फॉर्म है। अब देखिए मान लीजिए ये वेव फॉर्म यहां तक जाती है और वापस यहां तक आती है, फिर यहां तक जाती है और वापस यहां तक आती है। ओके, यहां मैं पहुंच गया। अब इस वेव में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, ये वेव यहां गई और इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, तो ये अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ अब नहीं जाएगी, ये 180 फेज शिफ्ट के साथ वापस आ जाएगी, फिर ये चलने लगी ऐसे ऐसे ऐसे। और मान लीजिए यहां आके इसमें फिर से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, पॉजिटिव फेज शिफ्ट आएगा, तो फिर से ऊपर चली जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी और फिर से चलने लगेगी। यानी इस तरह से तो एक्चुअली हुआ तो फेज में चेंज है, लेकिन बदली क्या है इस वेव की, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, ये इसकी रेगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ये इस वेव की रेगुलर फ्रीक्वेंसी थी। तो क्या यहाँ रेगुलर रह पाई, क्या यहाँ रेगुलर रह पाई? तो एक्चुअली जो फेज का मॉड्यूलेशन है या फेज चेंज है वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी चेंज ही है, वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी चेंज ही है। तो यहां से जो मुझे आउटपुट मिलती है वो एक एफएम वेव के फॉर्म में मिलती है, एफएम वेव की फॉर्म में मिलती है। और एफएम वेव की ये फॉर्म पहुंचती है ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स के पास, फिर पहुंचती है मिक्सर के पास, फिर से ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स के पास, और फिर क्लास सी पावर एम्पलीफायर के पास। ये पूरा का पूरा नेटवर्क केवल और केवल इस एफएम वेव की, जो कि फेज मॉड्यूलेटर ब्लॉक से मुझे मिली है, इस एफएम वेव के पावर लेवल को इन्हांस करने के लिए यूज किया जाता है। इस पूरा ब्लॉक का काम है इस एफएम वेव के पावर लेवल को इन्हांस करना। ओके, तो इस तरह से जो इन्हांस्ड एफएम वेव है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास पहुंचती है और यहां से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर जाती है। सो मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, आप देखिए कैसे होता है। ये मेरे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर था, मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूं। ये मेरे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर था, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन है जिसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम को मैं फेज मॉड्यूलेटर कहता हूँ और इस वाले ब्लॉक डायग्राम को मैं मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर्स कहता हूँ। मल्टीप्लायर और एम्पलीफायर्स का काम केवल इतना है कि वो यहाँ से मिलने वाली इनपुट के पावर लेवल को इन्हांस करते हैं और ट्रांसमिटिंग एंटीना तक पहुंचाते हैं। अब देखिए इस ब्लॉक में क्या होता है। यहाँ मेरे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है, क्योंकि जर्नल ऑसिलेटर एक साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करते हैं, लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर के जो विशेषता है वो ये है कि ये एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेव को प्रोडक्शन करता है। यहाँ से मुझे मिलती है कैरियर, यानी कैरियर वेव मिलती है, वो पहुंचती है बफर के पास। बफर क्या करता है, इस कैरियर वेव को आइसोलेट करता है, इसमें से जो नॉइज लाइक डिस्टॉर्शन फैक्टर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसे भेजता है कंबाइनिंग नेटवर्क में। वहीं से एक कैरियर वेव पहुंचती है 90 डिग्री फेज शिफ्टर के पास, जो इस कैरियर वेव के फेज को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है और वो पहुंचती है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास। अब बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में एक इनपुट इधर से आती है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
ओके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही वो सिग्नल है जिसमें इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, जिसे आप वॉइस सिग्नल, मैसेज या सिग्नल इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या जाता है ऑडियो इक्वलाइजर में, और ऑडियो इक्वलाइजर में क्या होता है, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वलाइजेशन किया जाता है और यहाँ से इक्वलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मुझे मिल जाता है। यानी इसमें जो भी फैक्टर्स हैं इस सिग्नल को वो इस ऑडियो इक्वलाइजर का काम है इस सिग्नल को स्मूथ करना। तो इक्वलाइज्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहुंचता है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के पास। अब बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है कि जो यहाँ से जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ कैरियर आई है और यहाँ से जो सिग्नल आया है, इसमें से कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है और केवल साइड बैंड्स को कहाँ पहुँचाता है, कंबाइनिंग नेटवर्क में। और यहाँ से बफर से आती है कैरियर वेव और यहाँ से पहुँचता है बैलेंस मॉड्यूलेटर से केवल साइड बैंड्स। तो कंबाइनिंग नेटवर्क में साइड बैंड का जो रिजल्टेंट है और कैरियर का जो कैरियर वेव का जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और वहां से आता है उनके फेज में चेंज। और वो जो फेज का चेंज है वही किस में चेंज वही किसका कारण बनता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफएम वेव। ये एफएम वेव मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर्स के ग्रुप्स के पास पहुंचती है, वो इसके पावर लेवल को इन्हांस करते हैं और वो जो इन्हांस्ड एम्पलीफाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास पहुंचती है और वो ट्रांसमिटिंग एंटीना उस इंफॉर्मेशन, उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देना है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से हमने फेज में चेंज किया, लेकिन एक्चुअली में वो किस में चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज। इनडायरेक्ट मेथड से हम एफएम वेव का जनरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।